रिद्धिमान साहा का सिनारियो अभी बहुत ही गलत सा मोड़ ले गया था विद द जर्नलिस्ट। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो अपने को नहीं पता। बट आई थिंक जो रिद्धिमान साहा ने किया है इंडिया के लिए, आई थिंक रिमार्केबल तो है। मतलब चाहे उसे मौके उतने नहीं मिले, बट बेचारा ड्रॉप हुआ, उसके ऊपर ये इंसिडेंट आ गया। उसके बाद अब जो सिनारियो चल रहा है कि ही इज नॉट रिवीलिंग द नेम। सो आई जस्ट वांट टू हैव योर थॉट्स। क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? इज ही डूइंग द राइट थिंग बाय नॉट रिवीलिंग द नेम, or with the pressure coming from, not pressure but suggestions coming from people like Sehwag, people like Oja, who sits in the council in the BCCI, to name that person and they will make sure कि वो बंदा उस बंदे के साथ वही हो जो उसने तुम्हारे साथ करने की कोशिश की। What do you think? क्या है People, ये? I think he should reveal the name. मतलब मेरे को रीजन समझ में नहीं आया कि जब आप मीडिया में आते हो, या तो आप एक सिलेक्टेड ग्रुप को बताओ, ठीक है, कि केवल बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को मैं बताऊंगा कि ऐसा कुछ हुआ है और उन्हीं के सामने नेम रिवील करूंगा. यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, यू आर टेलिंग एवरीवन दैट दिस हैज हैपेंड, एंड देन यू आर सडनली सेइंग कि अब मैं नाम रिवील नहीं कर सकता. I I don't know what his game plan was or what was he expecting from people by coming out in the public. So again, he's a good player. I'm not saying that, but he should not, either he should not have come in public. Simply जाके बीसीसीआई की किसी कमेटी को बता देता और वहां नाम रिवील कर देता कि ऐसा हुआ है. That's it. I think I still don't understand why he's not revealing the name. yeah, I think maybe इसको I'll talk about both the aspects, right? One, selection. दूसरा, I think I agree with Mayank and what Viru Paji said. गहरी सांस ले और नाम बोल दे, ठीक है? तो भाई नाम बोल दे. अब I think it is blown out of proportion, but I'll come to the original incident and ये जहां से शुरू हुआ, right? I think this has played out wrong. I think Vridhiman Saha probably had the right intentions because उसको दादा से अलग मैसेज आया है, राहुल द्रविड़ से अलग मैसेज आया है. Rahul Dravid, I think he has come out personally and he has explained what he wanted to convey, Yes. right? Because and Vridhiman Saha should also understand this, right? He is 37 at the moment. इस साल इंडिया सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेल रहा है. दिस इज a T20 ईयर, as we should say, right? So 3 टेस्ट मैच खेल रहा है. You are not going to be the number 1 keeper in the side. They can travel with you all you want, right? But they have to groom a second keeper in the long run. Okay, maybe if the message was loud and clear, you're dropped, ये नहीं होता. But I think Dravid, as he said, he respects Vridhiman Saha for what he's done over the years, and that's why he gave him that message कि भाई you would not be considered, right? And it is all these factors कि भाई इस साल 3 ही मैच होंगे, ये तीनों मैच में अगर ऋषभ पंत खेल रहा है, you will anyway be the second choice. So we don't want to keep a 37-year-old second choice, right? I would rather keep a 20-year-old or a 24-year-old second choice so that I can groom him if Rishabh Pant is not available 2 years down the line. Maybe maybe Vridhiman Saha is not available. But I think the second side to this would be, from what I think Vridhiman Saha has in mind is, I think he still believes probably he's got a lot of years left. Okay. He said that. यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि I think we are also being very biased from Indian team point of view because we are appointing a captain who is 34 years old, but we are telling to a 37-year-old कि भाई तू अब आगे नहीं खेल पाएगा. I think the fitness level for all the players has now gone up, right? And 32, 33, 34 is not the age when they want to retire. They want to continue until 37, 38, 39. We have seen Sachin, Dhoni and everybody, right? And I think Rohit Sharma, Virat Kohli are at their prime at the moment, right? In terms of fitness, kelo या batting kelo at this age. So I think that all these factors play into it. But I don't think Vridhiman Saha should have come out in the first place. मेरा थोड़ा सा डिफरेंट, मेरा वो टेक है कि when you join an organization, ठीक है, the political aspects of that organization are part of parcels of that organization, ठीक है. तो रहाणे in an interview saying कि शास्त्री ने ऐसा बोला था and all those things, रिद्धिमान साहा कमिंग कि द्रविड़ ने ऐसा बोला था, मेरे हिसाब से हाईली अनप्रोफेशनल, ठीक है. जब तुम्हारे साथ सब अच्छा हो रहा होता है, जब तुम्हें अच्छे चांसेस मिल रहे होते हैं, जब तुम एक भी 50 नहीं मार रहे होते हो, फिर भी टेस्ट मैच खिला रहे होते हैं, तब तुम्हें कभी नहीं लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा था या हम दूसरों के चांसेस खा रहे थे. बट अचानक से जब तुम्हारे साथ थोड़ा गलत होने लगता है, देन यू कम एक मैच जिता के, वेयर ही प्लेड आई थिंक
30% भी नहीं रोल था उसका, एंड देन ही केम और उसने बोला, मतलब जिन्होंने जान लगा दी, शुभमन गिल ने, पुजारा ने हाथ पे खा खा के, उसमें ही वांट्स टू टेक 11 लोगों का क्रेडिट है यार। मतलब कोच ने लिया तो एट द एंड तू भी वही करा ना, कोच का क्रेडिट उठा के तो अपने पे डाल रहा है। 11 लोग का क्रेडिट था, इट वाज अ टीम एफर्ट, क्रिकेट इज अ टीम गेम, ठीक है। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने करा था, कि मैंने ऐसा किया था, नहीं। दूसरी चीज है, ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मयंक ने बोला, इंटरनली हैंडल होनी चाहिए। ट्विटर तुम्हारे पास आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि कल की डेट में तू अपनी कंपनी के कुछ भी वो डालेगा, इट्स हाईली अनएथिकल फॉर माई पार्ट। एंड जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तुमको पता होता है ये सब, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें आंख बंद करके बोला जाता है कि अब घूम जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तुमको सब चीजें पता होती हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है, नाम बताना नहीं बताना, देन आई फील इट्स हिज पर्सनल चॉइस, ठीक है, कि वो बताना चाहता है, मतलब he should, because he will be living with the consequences of what happens to the other guy. So I think that is purely personal. Some people मतलब कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी पर्सनल चॉइस कि वो बताना चाहता है कि नहीं बताना चाहता है। उस पर मैं नहीं करूंगा, पर मेरे हिसाब से ये सब होना ही नहीं चाहिए। लाइक आई थिंक कि कुछ गलत होता होगा, सबकी ऑर्गेनाइजेशन में होता होगा यार, मतलब, बट ऐसा नहीं है, यू कांट एयर योर डर्टी लॉन्ड्री ऑन ट्विटर, ठीक है। आफ्टर बीइंग पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर्स 11 ईयर्स, दैट इज, मतलब तुम्हारा सब कुछ वहां से आया है। सो मेरे हिसाब से इनिशियली जो हुआ दैट वाज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता कि, मेरे हिसाब से एक और वो साइन कराना चाहिए इन द कॉन्ट्रैक्ट कि यू विल नॉट बी पुटिंग दीज थिंग्स ऑन ट्विटर एंड थिंग्स लाइक दैट। मुझको ऐसा लगता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। Yeah, I think I agree with all of you to an extent. I think we are all saying the same thing. Primarily उसको basically internally matters को handle करना चाहिए था. And I think the way Rahul Dravid has went to him and said, देख तेरे को मीडिया से पता चलेगा, इससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. I think he did a fantastic job there. As a मतलब people management के aspect से उसने बहुत बढ़िया किया कि this is it. I think there was an aspect where he said कि अगर तुम्हें कोई डिसीजन लेना, मीनिंग टेस्ट से रिटायर होना, तो वो भी तुम कर सकते हो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द केस. आगे के 1 साल या 1.5 साल, जैसे रोहित ने बोला, ज्यादा टेस्ट है नहीं, तो देर इज गोना बी नो चेंज. तो उसने तो अच्छा हेड्स अप दिया है आई थिंक. बट आई डोंट नो एक रॉन्ग टर्न पे क्यों चली जाती हैं चीजें फ्रॉम प्लेयर्स. एक्सपेक्टेशंस है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो भी है, कि जो भी इनके करियर्स हैं, आई फील डेकोरेटेड करियर्स हैं सबके, इसका है, रहाने का है, जिसका भी है, उनको सेलिब्रेटेड वे से बाहर जाना चाहिए. बट आई थिंक दे टेक इट एज एन ऑफेंस. आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस, व्हाई इज दैट कल्चर. तो दैट ऑफेंस इज देयर कि मेरे को बाहर क्यों निकाल दिया, मुझे बाहर नहीं, और निकाल दिया मुझे यार. ये चीज भी बहुत बुरी लगती है कि अगर एक कोच चला जाता है तो फिर तुम उस कोच की मारते हो, ठीक है। जब वो कोच वहां होता है तब तुम्हें डर होता है कि हम खेलेंगे नहीं अगर हम बोल देंगे. सो दोज आर डबल स्टैंडर्ड्स एज पर माई व्यू, ठीक है। तुम रवि शास्त्री के जाने के बाद बोल रहे हो, अगर तुम्हारे में दम था तो तब बोलते, ठीक है। तुमने तब नहीं बोला बिकॉज देन यू वुड लूज योर प्लेस इन द टीम, But I राइट, think यू in माइट this गेट एक्ट, बिकॉज overall, रहाने का तो इट वाज अनबिलीवेबल यार, मतलब कि उसको इतना चांस दिया, मतलब वी ऑल वर फ्रस्ट्रेटेड कि क्या हो रहा है, राइट। मतलब श्रेयस अय्यर सेंचुरी मार के अगले मैच में बैठ जा रहा है क्योंकि रहाने को खिलाना है, क्योंकि उसको एक और चांस देना है. देन एट दैट पॉइंट ही वाजंट सेइंग एनीथिंग. अब जब उसको एक बार वो हो गया तो देन ही विल ब्रिंग ऑल दिस थिंग. दिस इज रॉन्ग. मेरे हिसाब से ट्विटर राइट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट. मतलब तुम अपने पर्सनल चीजें ट्वीट करो, डांस करो, ट्विटर टिकटॉक पे वीडियो बनाओ, आई डोंट गिव अ मतलब टू रैट्स एज. बट अगर तुमको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलना, दैट राइट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम देम. ऐसा नहीं है यार, क्रिकेटर्स आर लाइक सेकंड गॉड्स इन इंडिया. तो तुम अगर बेचारगी लेके आओगे तो बेचारे नहीं हो तुम. टू बी ऑनेस्ट, सॉरी, मतलब यू कम इन टॉप 3 ब्रीड्स ऑफ इंडियन, राइट. तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरे साथ तो, भाई तुम्हारे साथ बहुत होता है, 25-25 करोड़ मिल रहे होते हैं, एड मिल रहे होते हैं, बहुत बहुत कुछ अच्छा होता है, ठीक है. यू आर नॉट लाइक, तुम बेचारा बन के मत आओ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. तो मुझे आई हैड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इट कि नहीं होना चाहिए. मतलब ट्विटर राइट शुड नॉट बी गिवन फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट. we can see that. हाँ, लगा ही पड़ा है. बंद ही नहीं हो रहा है. इतना ही खुल गया. चलो, नहीं, आई थिंक आई थॉट इस टॉपिक पे थोड़ी सी डिस्कशन करना बनता था. काफी हीट पकड़ ली है इसने, और दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस अप. तो नहीं, सही है. आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग. तेरी इंटेंशन सही है,
So and you're right, like I mean जब चीजें अच्छी जा रही होती हैं nobody tells कि ये अच्छा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया फलाना ठिकाना, nobody says that. तो नहीं, डर्टी हर स्पोर्ट लॉन्ड्री में के लिए होता है, सब कुछ बन हर गया। स्पोर्ट हाँ, में होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मैं तो बोलूंगा ये रेटिंग पीरियड ही चल रहा है उनका, उनको रेटिंग अच्छी मिली, किसी को खराब मिल गई, वैसा ही सिस्टम है, किसी की ऑन साइट लग गई, किसी की नहीं लगी, वही एस्पेक्ट है। बट आई थिंक ऑल इन ऑल नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इसको अभी आईपीएल में तो चांस मिलना ही मिलना है विद गुजरात, एंड आई थिंक इसकी स्पॉट भी मोर और लेस है ही है कि ये खेलेगा, बिकॉज उधर भी ज्यादा कीपर ऑप्शन है नहीं, तो ही विल हैव अ लॉट टू प्रूव, लेट्स सी व्हाट ही डू इन देयर। ये वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। वही बट मुझे बॉटम लाइन ये है कि he doesn't have to prove anything. We know he's good. We know, we have respected. He's played. He won like very crucial games. Almost won them the IPL in that final. हाँ पंजाब Okay. को, यस मतलब तो he has done it. So मेरा पॉइंट वही होता है कि तुमको मतलब क्या मतलब what are you expecting from us? We know you are great. We have watched you all through that, right? We have like we have cheered for you all through your time. अभी क्या तुमको चाहिए हमसे? What else you want बट from us? मुझे क्या मुझे ऐसा तुम्हारे लगता है ना, सिस्टम में भी मेरा डीडी मेरा थॉट प्रोसेस इसमें ऐसा है कि आई थिंक दिस हैपेंस इन ऑल द स्पोर्ट्स, राइट? एंड स्पेशली जब वी आर नियरिंग आवर करियर एंड, राइट? तो इतने साल खेलने के बाद वी हैव एन एक्सपेक्टेशन कि भाई मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, आई even if I don't play consistently well, they should persist with me. I think that mindset comes from sports personalities. I think they know it better. We are not to judge them. But I think from selection point of view, it is very important. You can back young talents if they are making mistake कि तुम उसको groom कर रहे हो. When you come at a certain age, I think even let's say Virat Kohli or Rohit Sharma are at a certain age, कि अगर वो 1 साल 2 साल अब नहीं अच्छा खेलेंगे, यू विल हैव टू टेक दैट टफ कॉल कि भाई वी हैव टू लुक पास्ट यू. आई नो यू हैव डन ऑल द ग्रेट थिंग्स in the past, but I cannot be backing a 35-year-old or a 36-year-old to come good in next year or the year after that, right? That's true. You can obviously play if you are performing at 35 at a consistent level, you can continue to play. But if you drop for a year or more than that, then I mean it's time to take tough calls there. हाँ नहीं एब्सोल्युटली, आई थिंक वही एक देयर शुड बी अ कल्चर, वो मेरे को लग रहा है बहुत प्लेयर्स के साथ नहीं हुआ। बहुत एग्जांपल्स है, युवराज सिंह इज एन एग्जांपल, देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट कि उन्होंने एक अच्छा डेकोरेटेड करियर रखा बट एंड में सेलिब्रेटेड वे से बाहर नहीं गए। आई थिंक दैट कल्चर हैज टू कम, एक अच्छे मोड पे यू नो विदाई हो जानी चाहिए कि यार जॉब वेल डन, probably दैट्स league इट। probably franchise cricket की वजह से ही हो रहा है ये, क्योंकि इवन दो तुम टेस्ट मैच इधर नहीं खेलते हो, तुम इधर खेलते हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ खेल रहा हूँ तो मैं वहां क्यों नहीं मैं खेल कर रहा तो रहा हूँ, हूँ। राइट? पहले ऐसा नहीं था, पहले तुम नहीं खेलते थे फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो इधर और था। अब इट्स लाइक यार वो तो कह रहा है फ्रेंचाइज वाला कि मैं अच्छा खेल सकता हूँ, बट फिर यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, फिर यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। या चलो, आई थिंक एट द लास्ट आई वुड आल्सो लाइक टू से, ऐसा नहीं है कि हम सब, आई नो वी आर सेइंग कि भाई नाम ले दे या तो बोलता ही मत। ऑन द फ्लिप साइड आई वुड से कि यार जर्नलिस्ट के जो मैसेजेस थे जो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे, लेकिन जो इसने डाले व्हाट्सएप पे, आई थिंक वो भी थोड़े धमकी टाइप के थे, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी सामने से प्रोफेशनल है। ही शुड हैव यूज्ड अ बेटर लैंग्वेज, आई थिंक दैट इज फेयर टू से। ऑल्दो चलो मेरे ख्याल से एक नाम छुपाया जा रहा है जिसकी वजह से 4 लोगों को या 10 लोगों को गाली पड़ चुकी है, ये है, ये वो है, ये वो है। तो दैट इज ऑल हैपनिंग, बट या दैट इज द फन विद यू नो Twitter and democracy or whatever you want to call it, right? We'll end at this note, right? It was a fun call. चलो बाय बाय। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, एकदम से लीव मत करना। ये अपलोड में टाइम लेता है। आप तुम्हारे को राइट साइड में ना अपलोड दिख रहा होगा परसेंटेज अपना, तो अपने परसेंटेज को 100% होने देना। तो मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जब 100 हो जाएगा तो लीव कर देना। Okay, all right. ओके।